echo of his call. Good morning to you all. आप सभी को सुप्रभात। I am so glad to meet with you this morning with this message of the gospel. मैं आज की सुबह परमेश्वर के संदेश को लेके आने के लिए बहुत खुश हूँ। I meet so many people with the question that when people are coming and asking doubts about the love of God. मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो कि पूछते हैं परमेश्वर की बारे में। Also, as God's children, we should be ready in various areas of our life. परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हर एक की बातों में। One of the areas in which we have to be careful and ready is हमें हर समय एक बातों को सतर्क रहना चाहिए। some people are coming and asking some doubts and questions about the love of Jesus Christ. कोई कोई आ करके प्रभु यीशु की प्रेम के बारे में सवाल पूछते हैं। They raise questions about the birth of Jesus and death of Jesus as well as the resurrection of the Lord Jesus Christ. वे प्रभु यीशु मसीह की जन्म, उसकी मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान के बारे में सवाल पूछते हैं। So the world always see the children of God with various questions. इस संसार के लोग के बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है परमेश्वर के बारे में। Sometimes reasonable questions and sometimes unwanted questions. कभी-कभी वो लोग सही सवाल को पूछते हैं, कभी-कभी कि गलत सवाल को भी पूछते हैं। Anyhow, we, the children of God, have to be very careful in giving the explanation of the love of God to other people. परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अति सतर्क से उन लोगों का प्रश्न को उत्तर देना चाहिए। The reason is the worldly people are seeing a difference in the culture of the Christians and children of God. इसका कारण ये कि संसार में देखते हैं ये सारे लोग कि उन लोगों का संस्कृति के बारे में और उनकी मन में कई प्रकार का प्रश्न पैदा होता है। Also, the teachings of the Lord Jesus Christ is totally different from others. और हम देखते हैं कि संसार का शिक्षा और यीशु मसीह की शिक्षा में कई अंतर है। Sometimes the ways of God's children are not acceptable by the worldly people. कभी-कभी परमेश्वर का संतान संसार के लोगों के द्वारा कि वो लोग अपने ग्रहण नहीं कर पाते हैं। So the worldly people always think why the Christians are not coming to our line of culture. कभी-कभी अन्य जाति लोग इस प्रकार सोचते हैं क्यों कि ये मसीह लोग हम लोगों के धर्म में नहीं आते हैं। When someone comes and asks you some questions, you should not get angry and you should not fight with them. जब कोई आकर के सवाल पूछते हैं उस समय हमें गुस्सा नहीं हो करके नम्रता हो करके उत्तर देना चाहिए। You should not quarrel with them. उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। Also, I am personally against in conducting debates in the churches about Christianity and Christ. मैं व्यक्तिगत तौर से कि ये विरोध करता हूँ जो कि कलीसिया में लोगों को बुला करके कि दूसरी धर्म के साथ तर्क वितर्क करने में। The great name of the Lord Jesus Christ should not be kept as a theme for their debates. और प्रभु यीशु की महानता को कि ये उसको एक तर्क में की आलोचना नहीं करना चाहिए। Some good Christians also, some good children of God also are feeling bad when someone questions them about their faith. कभी-कभी अच्छे मसीह लोग भी कि जब दूसरे लोग सवाल पूछते हैं तर्क करने के लिए कहते हैं तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। So God's children should be very careful in answering the questions of the people in front of them. उन लोगों को ये जितने मसीह लोग जो कि तैयार रहना चाहिए उन लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए। When someone comes and asks you some questions or doubts, Bible says, sanctify the Lord God in your heart.
और यहाँ पे बाइबल इस प्रकार कहता है, जब कोई भी व्यक्ति आकर के सवाल पूछते हैं तो हमें अपना मन को पवित्र करके बताना चाहिए। In everyday life, we are meeting so many people, and people are looking at us in a different way. रोज हमें कई लोगों को मिलते हैं और लोग हमें अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। In all the areas of our life, Bible says we should sanctify our life and heart. हमारे ये जीवन की हर बातों में कि पवित्र होना चाहिए। And always be ready to give a defense to everyone. हमें हमेशा सर्वदा तैयार होना चाहिए कि वो हमारा जब विश्वास के बारे में जवाब देने के लिए। They may ask some questions or reason for the hope that in your life. जब वो लोग पूछते हैं कि हमारा आशा, हमारा विश्वास के बारे में, उस समय हमें तैयार रहना है कि जवाब देने के लिए। Bible is very clear. You should not quarrel with them. बाइबल कहता है कि हमें झगड़ा नहीं करना है। You should answer them with meekness and fear. बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब वो लोग प्रश्न करते हैं, हमें नम्रता और भय के साथ उत्तर देना है। Here, fear means not afraid of the people. You should have a cordial relationship with them. भय का मतलब ये नहीं कि उनके साथ उनको हम डर रहे, पर उनको हम नम्रता के साथ उत्तर देना है। In one translation, I have read that we should have due respect to the people, those who are coming and asking questions. एक अनुवाद में मैं इस प्रकार पढ़ा है कि जो लोग आकर के सवाल पूछते हैं, उन लोगों को नम्रता के साथ की इज्जत के साथ उत्तर देना चाहिए। Finally, I want to tell you that when somebody come and question you, don't panic. आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति आकर के सवाल पूछते हैं हमें कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। When you are filled with the power of the Holy Spirit, the Lord will speak to you and guide you. जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परिपूर्ण होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें की अगुवाई करेंगे सही उत्तर देने के लिए। Keep sanctification in your heart. अपने हृदय को पवित्र बनाइए। Keep meekness and respect. और नम्रता और इज्जत हमारे हृदय में रखना है। Be happy to explain your experience with Jesus Christ. प्रभु यीशु की द्वारा जो हमें अनुभव मिला है, उन अनुभव को दूसरे को बांटने के लिए तैयार रहना है। With all these qualifications, you should be ready. ये सारे योग्यता को लेकर के हमें उत्तर देने के लिए तैयार होना है। Remember, the faith you are having in your heart is great. जो विश्वास हमारे जीवन में है वो बड़ा है। Be firm in it. उस विश्वास में हमें खड़े रहना है। And certainly God will bless you. परमेश्वर निश्चित तौर से आप सभी को आशीष देंगे। You should not give up. उस विश्वास को छोड़ना नहीं है। You should stand firm and give explanation to the people, those who are coming and asking you. हमें विश्वास में मजबूत हो करके जो हमें सवाल पूछते उन लोगों को सही उत्तर देना चाहिए। By that way, you can save those people. और उसके द्वारा उन लोगों को, उन आत्मा को हम पा सकते हैं। By that way, you can guide them to the experience of salvation through the love of Jesus Christ. जब उत्तर सही दे करके उन लोगों की परमेश्वर का प्रेम का भागीदारी कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Let me pray with you now. हमें आप सभी लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, thank you so much for this time. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते I हैं। pray for my loved ones, those who are listening my voice now. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग मुझे मेरा बातों को सुन रहा है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord, I ask you to give the spirit of Holy Spirit to these people. प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को पवित्र मन दीजिए। People are going here and there to find God in their lives. लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि परमेश्वर को, खुदा को पाने के लिए। Lord, you are living in our hearts. आप हमारे हृदय में प्रभु वास करते हो। We want to expose you to our neighbors. हमारा जो आस पड़ोस में उन लोगों को आपको प्रकट करने के लिए मदद कीजिए। Give grace to the people. प्रभु, आपकी अनुग्रह उन सारे लोगों के ऊपर में दीजिए। Lord, I ask you to put your hand upon my people here.
खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के जीवन के ऊपर आप आशीषित कीजिए। The people, those who are listening, should be blessed. जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को आशीषित कीजिए। Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद देते आप सारे बातों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।